Question 1. A, without being asked by anyone, saves B's goods from a burning warehouse. B later promises to pay A rupees 5,000 for having saved his goods. Can A enforce this promise? Option A. Yes, because saving goods is a valid and sufficient act of consideration. Option B. No, because the act was not performed at the desire of the promiser. Option C. Yes, because past acts are valid consideration under Indian law. Option D. No, because A is a stranger to the contract. Answer B. ये क्वेश्चन सेक्शन 2D का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैप है. सेक्शन 2D की ओपनिंग कंडीशन है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. जब ए ने गुड्स बचाए, बी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी. ए ने अपनी मर्जी से स्पॉन्टेनियसली एक्ट किया. इसलिए ये एक्ट कंसिडरेशन नहीं बनता, चाहे ये कितना भी नोबल क्यों ना हो. ऑप्शन सी बहुत टेम्पटिंग है और यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं. हाँ, इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्ट प्रॉमिसर की डिज़ायर पर किया गया हो. यहाँ डिज़ायर का एलिमेंट कंप्लीटली एब्सेंट है. बी का सब्सिक्वेंट प्रॉमिस एक न्यूडम पैक्टम है, नेकेड प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन. और ऑप्शन डी पूरी तरह इर्रेलेवेंट है. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ कोई इशू नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनी ही नहीं. ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स मिस करते हैं. अब तुम नहीं करोगे. नाउ हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन 2. Which of the following elements is not explicitly included in the definition of consideration under Section 2D of the Indian Contract Act 1872? A. The act or abstinence must be at the desire of the promiser. B. Consideration must always move from the promisee alone. C. A promise to do something can itself constitute consideration. D. An abstinence from doing something can be consideration. Answer B. Section 2D के exact words हैं the promisee or any other person has done or abstained from doing. यानी इंडियन लॉ में कंसिडरेशन किसी भी पर्सन से मूव कर सकता है, promisee से या किसी थर्ड पार्टी से. ये इंग्लिश लॉ से एक क्रिटिकल डिफरेंस है. इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द promisee. इंडिया में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये डिस्टिंक्शन एग्जाम्स में बार बार आता है. Question 3. A promises to pay B rupees 10,000 if B will paint A's house. Before B can respond, B's friend C pays rupees 10,000 to A on behalf of B. A now refuses to get his house painted. Is the agreement enforceable? Option A. No, because consideration must move from the promisee, not a third party. Option B. Yes, because under Indian law, consideration can move from any person. Option C. No, because B himself did not provide consideration. Option D. Yes, but only if B formally ratifies C's payment. Answer B. यहाँ इंडियन लॉ की यूनिक पोजीशन अप्लाई होती है. सेक्शन 2D promisee और एनी अदर पर्सन कहता है, इसलिए C का पेमेंट वैलिड कंसिडरेशन है. B और A के बीच कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है. ये प्रिंसिपल चिन्नैया वर्सेस रामैया 1882 में मद्रास हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था. हम उस लैंडमार्क केस पर डिटेल में आगे आएंगे. Question 4. The word something in Section 2D refers to which of the following? A. Only a monetary payment. B. Only a physical act. C. Any act, abstinence or promise. D. Only a legally enforceable obligation. Answer C. समथिंग का स्कोप सेक्शन 2D में एक्सट्रीमली ब्रॉड है. ये 3 फॉर्म्स में हो सकता है. एक एक्ट मतलब कुछ करना, एक एब्स्टेनेंस मतलब कुछ न करना, या एक प्रॉमिस मतलब कुछ करने या न करने का वादा. इसीलिए कंसिडरेशन 3 टाइप्स की होती है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और पास्ट. तीनों सेक्शन 2D में एक्सप्लिसिटली कवर्ड हैं. Question 5. A asks B to stop smoking for 1 year, promising to pay him rupees 50,000 if he does so. B abstains from smoking for the entire year. Which type of consideration has B provided? A. Past consideration. B. Future consideration. C. Executed or present consideration. D. Illusory consideration. Answer C.
बी ने ए की डिजायर पर एब्स्टेनेंस किया और उस एब्स्टेनेंस को कंप्लीट कर लिया। ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। बी का कंसिडरेशन बी का एक्ट ऑफ एब्स्टेनिंग है। ये रियल एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, भले ही इसमें कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं है। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, लेकिन रियल होना जरूरी है। एब्स्टेनेंस फ्रॉम अ लीगल राइट इज परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन। Q6. A agrees to sell his car worth rupees 5 lakhs to B for rupees 500. B later wants to avoid the contract, claiming the consideration is inadequate. Which of the following is correct? A. The contract is void because consideration is grossly inadequate. B. The contract is valid because consideration of adequacy is not required. C. The court will interfere to ensure a fair price. D. The contract is voidable at B's option. Answer B. Section 25 का explanation 2 clearly कहता है, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. Adequacy of consideration is not a legal requirement. Courts do not sit as arbiters of commercial fairness. ए को अगर फ्रीली कंसेंट दी है तो 500 रुपीज में कार बेचना उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ एक न्यूएंस है। Inadequacy of consideration can be evidence of absence of free consent. मतलब अगर कोई कोर्ट को ये प्रूव करना हो कि ए का कंसेंट फ्री नहीं था, coercion, undue influence, तो grossly inadequate consideration उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगी, लेकिन खुद inadequacy से कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए चूज कर लेते हैं क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कि 500 रुपीज में कार बेचना अनफेयर है, लेकिन लॉ कॉमन सेंस से नहीं, प्रिंसिपल से चलता है। Q7. Which of the following would be considered illusory consideration, making the contract void? A. E promises to pay B 1000 rupees if the sun rises tomorrow. B. A promises to pay B whatever A feels like paying after the work is done. C. A promises to pay B rupees 5,000, an amount far less than the work's market value. D. A promises to pay B in foreign currency. Answer B. इल्यूजरी कंसिडरेशन वो है जो देखने में कंसिडरेशन लगती है लेकिन एक्चुअली प्रॉमिसर को कोई रियल ऑब्लिगेशन नहीं बनाती। Whatever A feels like paying, ये A की डिस्क्रिशन में है। A कुछ भी तय कर सकता है, यहाँ तक कि 0। इसमें म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए ये इल्यूजरी है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऑप्शन ए इंटरेस्टिंग है, ये एक कंडीशन है जो सर्टनली होगी, सन विल राइज, लेकिन ये इल्यूजरी नहीं है, इट्स जस्ट अ कंडीशन। ऑप्शन सी इनएडिक्वेट है बट रियल। ऑप्शन डी वैलिड है, फॉरेन करेंसी पेमेंट रियल कंसिडरेशन है। Q8. A promises his employee B that he will pay him his regular salary if B continues to perform his existing duties. Is this a valid consideration? A. Yes, because salary is monetary consideration. B. No, because performing an existing duty is not valid consideration. C. Yes, because employee services are always valid consideration. D. No, because there is no new promise from B's side. Answer B. ये एग्जिस्टिंग ड्यूटी रूल का क्लासिक क्वेश्चन है। अगर बी पहले से ए का एम्प्लॉई है और सैलरी के बदले सेम ड्यूटीज परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है, तो वही ड्यूटीज कोई न्यू कंसिडरेशन नहीं बनती। प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नॉट फ्रेश कंसिडरेशन। ये इंग्लिश केस स्टिल्क वर्सेस मायरिक 1909 का प्रिंसिपल है, जो इंडियन लॉ में भी अप्लाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन, अगर बी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, तो वो न्यू कंसिडरेशन बन सकती है। Q9. For consideration to be valid under Indian law, it must be adequate, real and certain, real, possible and lawful, adequate, lawful and monetary, present, certain and paid in cash. Answer B. Valid consideration के essentials हैं: 1. Real or not illusory, 2. Possible legally and physically, 3. Lawful under Section 23. Adequate होना जरूरी नहीं, Section 25 Explanation 2 यही कहता है। Monetary होना भी जरूरी नहीं, Abstinence, Services, Goods सब valid है। ये बहुत important है। Q10. A agrees with B that if B will not sue A for an old debt, A will give B a new television.
B agrees and does not file a suit. Later, A refuses to give the television. Is there valid consideration? A. No, because B has merely refrained from doing something which is not consideration. B. Yes, because forbearance to sue is a recognized form of consideration. C. No, because the original debt makes this agreement void. D. Yes, but only if the debt was actually owed. Answer B. Forbearance to sue, किसी लीगल राइट का यूज न करने का प्रॉमिस, ये परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन है. बी के पास ए पर सूट करने का लीगल राइट था. उस राइट को न एक्सरसाइज करने का प्रॉमिस बी का कंसिडरेशन है. ये एब्स्टिनेंस है और सेक्शन 2D एक्सप्लिसिटली एब्स्टिनेंस को कंसिडरेशन की एक फॉर्म मानता है. क्वेश्चन 11. ए की मदर प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर करती है इस डायरेक्शन के साथ कि ए अपनी आंट को एन्युइटी पे करेगी. ए एक डीड एग्जीक्यूट करती है एन्युइटी पे करने के लिए. लेटर ए पेमेंट स्टॉप कर देती है. क्या आंट ए पर सू कर सकती है इस प्रॉमिस को इन्फोर्स करने के लिए? ए. नहीं, क्योंकि आंट ए और उसकी मदर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है. बी. नहीं, क्योंकि आंट ने ए को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया. सी. हाँ, क्योंकि आंट बेनिफिशियरी है इस अरेंजमेंट की और इंडियन लॉ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन को परमिट करता है. डी. यस, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे के प्रॉमिसेस इन्फोर्स कर सकते हैं. आंसर सी. ये चिन्नैया वर्सेस रामैया 1882 ILR फॉर मद्रास 137 का डायरेक्ट एप्लीकेशन है. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक मोस्ट साइटेड केस है. मद्रास हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि इंडियन लॉ में कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी, इट कैन मूव फ्रॉम एनी पर्सन. द आंट वाज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, शी डिडंट पे एनीथिंग, बट शी वाज अ थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी. इन इंडियन लॉ, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो जो एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करता है. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वर्सेस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. इन्हें मिक्स मत करो. क्वेश्चन 12. What is the fundamental difference between stranger to consideration and stranger to contract in Indian law? A. Both are equally barred from suing under Indian Contract Act. B. A stranger to consideration cannot sue, but a stranger to contract can. C. A stranger to consideration can maintain a suit, but a stranger to contract generally cannot. D. Both can always sue if they are third-party beneficiaries. Answer C. ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, वो पर्सन जिसने कंसिडरेशन नहीं दी, इंडियन लॉ में सू कर सकता है, चिन्नैया वर्सेस रामैया. लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है, जनरली सू नहीं कर सकता. ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. इंडिया में ये डॉक्ट्रिन इंग्लिश लॉ से थोड़ी डिफरेंटली अप्लाई होती है, लेकिन बेसिक रूल यही है. क्वेश्चन 13. A enters into a contract with B that B will perform certain services for A's son, C. C wants to enforce this contract. Which of the following is the correct legal position in India? A. C can always enforce the contract as the intended beneficiary. B. C cannot enforce the contract as he is a stranger to it. C. C can enforce only if he provided consideration. D. C can enforce only if the contract is registered. Answer B. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सी, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता. MC चैको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर 1969 SC में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल है. सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस हैं और एग्जाम्स यही एक्सेप्शंस पूछते हैं. Question 15. In which of the following cases can a stranger to a contract enforce it under Indian law? A. Where he is a beneficiary under a trust created by the contract. B. Where he has provided a promise in return. C. Where he is a relative of one of the contracting parties. D. Where he has suffered loss due to breach of contract. Answer A. Exceptions to privity of contract in India में सबसे important है beneficiary under a trust. अगर contract के थ्रू एक trust create हुई है और कोई person उस trust का beneficiary है, तो वो enforce कर सकता है, even if वो contract का party नहीं था. दूसरे एक्सेप्शंस में शामिल है मैरिज सेटलमेंट में बेनिफिशियरी, फैमिली अरेंजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी और एजेंसी सिचुएशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, इंडियन रूल. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, जनरल रूल, बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट फॉर ट्रस्ट बेनिफिशियरीज. Question 15. The rule that consideration must move from the promisee is a feature of A.
Indian Contract Act 1872 only. B. Both English and Indian law equally. C. English common law only. D. Neither English nor Indian law. आंसर सी। इंग्लिश कॉमन लॉ में ये स्ट्रिक्ट रूल है। ट्वेडल वर्सेस एडकिंसन 1861, डनलॉप वर्सेस सेल्फ्रिज 1915। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2D ने इस रूल को मॉडिफाई किया है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तीसरा पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकता है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो इंडियन लॉ को इंग्लिश लॉ से डिस्टिंग्विश करता है। एग्जाम्स में यही क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। Question 16. Past consideration is A. Always invalid under the Indian Contract Act. B. Valid in India only if it was done at the desire of the promisor. C. Valid in India regardless of whether it was done at the desire of the promisor. D. Valid in India only if it involves a written agreement. Answer B. ये क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। सेक्शन 2D में हैज़ डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग का फ्रेज पास्ट एक्ट्स को कवर करता है, लेकिन कंडीशन है कि वो एक्ट प्रोमिसर की डिज़ायर पर किया गया होना चाहिए। बिना डिज़ायर के किया गया पास्ट एक्ट इक्वल्स नो कंसिडरेशन। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन जनरली इनवैलिड है, इंडिया में वैलिड है विद द डिज़ायर कंडीशन। क्वेश्चन 17. ए की कार रोड पर खराब हो जाती है। बी वहां से गुजरता हुआ बिना कहे कार को धक्का देना शुरू कर देता है ए की मदद करने के लिए। ए फिर बी को 1000 रुपये देने का वादा करता है। क्या यहाँ वैलिड कंसिडरेशन है? ए. Yes because B performed an act which benefited A. B. No because B's act was not performed at the desire of the promisor. C. Yes because past services are always valid consideration in India. D. No because the promise was made after the act. Answer B. ये दोरास्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर केस का प्रिंसिपल है। बी ने ए की कोई रिक्वेस्ट आने से पहले स्पॉन्टेनियसली पुशिंग शुरू कर दी। ए की कोई प्रायर डिजायर नहीं थी, इसलिए बी का एक्ट वैलिड पास्ट कंसिडरेशन नहीं है। ए का प्रॉमिस न्यूडम पैक्टम है। लेकिन अगर केस ये होता कि ए ने पहले बी से रिक्वेस्ट की होती कि प्लीज पुश माई कार, आई विल पे यू, और बी ने पुश किया, तो ये वैलिड पास्ट कंसिडरेशन होती। डिजायर ने कंसिडरेशन को वैलिड बनाना था। Question 19. A promises to pay his old servant B rupees 2000 per month for the rest of B's life in consideration of the valuable services B rendered to A's family over the past 30 years. Is this promise enforceable? A. No because past services cannot be consideration. B. Yes because the past services were rendered at A's desire and Indian law recognizes past consideration. C. No because the promise is too vague regarding the period. D. Yes but only if reduced to writing. Answer B. ये इंडियन लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन है। 30 साल की सर्विसेज ए की फैमिली के लिए ए की डिजायर पर यह वैलिड पास्ट कंसिडरेशन है। ए का करंट प्रॉमिस एनफोर्सेबल है। ये सेक्शन 2D का हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग क्लॉज डायरेक्टली कवर करता है। अगर इंग्लिश लॉ की एग्जाम होती, आंसर बी नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज जनरली नो कंसिडरेशन, रॉसकोरला वर्सेस थॉमस रूल। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये एक्सेप्शन नहीं, ये रूल है। Question 20. A promises to pay B rupees 5000 if B promises to paint A's house next month. No act has been performed yet by either party. What type of consideration is this? A. Past consideration. B. Executed consideration. C. Executory or future consideration. D. No consideration as nothing has been done yet. आंसर सी। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दोनों फ्यूचर में परफॉर्म होंगे, ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है, ये परफेक्टली वैलिड है। अधिकांश कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स इसी टाइप के होते हैं। बायर प्रॉमिसेस टू पे, सेलर प्रॉमिसेस टू डिलीवर। कोई एक्ट अभी हुआ नहीं। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन को नो कंसिडरेशन मत समझो, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। 221. An agreement made without consideration is A. Voidable, B. Void, C. Illegal, D. Unenforceable only if challenged. Answer B. Section 25 का opening line. An agreement made without consideration is void. J. Absolute है. Void, not voidable, not illegal, not merely unenforceable. Void मतलब ab initio, from the very beginning, no legal effect.
यहाँ ऑप्शन बी बहुत कॉमन रॉन्ग चॉइस है। स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद चैलेंज होने पर ही प्रॉब्लम हो। नो, वॉइड अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली विदाउट इफेक्ट है। लेकिन सेक्शन 25 में एक्सेप्शंस हैं और इन्हें याद करना है। इन एक्सेप्शंस में अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होती है। 222 Under Section 25(1) of the Indian Contract Act, an agreement made without consideration is valid if A. It is between near relatives and is oral. B. It is written, registered, and made on account of natural love and affection between near relations. C. The Kam Sheha is between spouses only, regardless of registration. D. It is made out of natural love and affection, even if oral. Answer B. सेक्शन 2500 के अंडर वैलिड होने के लिए सभी 4 कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, अग्रीमेंट रिटन होनी चाहिए। प्रोहिबिट्स बिजनेस नीड रिलेशंस होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बस नियर रिलेशंस होने से काफी है। नो, सब कंडीशंस एक साथ जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन मिस हो गई, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। ओरल एग्रीमेंट है, एक्सेप्शन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q23. A Hindu, by a registered document, expressed natural love and affection for his brother B, promised to give him 1,000 rupees napta. A subsequently refuses. Is B entitled to recover? A. No, because there is no consideration for A's promise. B. Yes, because the promise falls under Section 25(1) exception. C. No, because promises between brothers are not enforceable in India. D. Yes, but only if B can prove actual natural love and affection exists. Answer B. ये सेक्शन 25(1) का टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन है। डॉक्यूमेंट रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ब्रदर्स इनको ब्रतीय नीर रिलेशन, ऑल 4 कंडीशन मेट। ये अग्रीमेंट वैलिड है विदाउट कंसिडरेशन। बी कैन रिकवर। ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग है। क्या कोर्ट एक्चुअल नेचुरल लव एंड अफेक्शन को वेरीफाई करती है? नो, कोर्ट ये नहीं देखती कि एक्चुअली प्यार था या नहीं। ये एक लीगल प्रिजम्पशन है जब नियर रिलेशंस हों, बस कंडीशंस चेक होती हैं। 224. Which of the following would not qualify as near relations under Section 25(1)? A. Brother and sister. B. Husband and wife. C. Uncle and nephew. D. Employer and employee. आंसर डी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कोई लीगल नियर रिलेशन नहीं है। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप नहीं। ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, अंकल नेफ्यू, ये सब टिपिकली नियर रिलेशंस माने जाते हैं अंडर पर्सनल लॉ। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी रहता है क्योंकि नियर रिलेशन की कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है। ये पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। Q25. E, out of natural love and affection, promises to give his daughter Rase 50,000 on her marriage. The promise is written but not registered. Is this enforceable under Section 25(1)? A. Yes, because natural love and affection is present. B. Yes, because the promise is written. C. No, because registration is mandatory under Section 25 first one. D. Because promises to daughters are gratuitous. Answer C. रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सेक्शन 25 लॉजिकल अंडर, लिखित होना इनफ नहीं है। ये बात बहुत क्लियरली सेक्शन 25(1) में मेंशन है। Expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents. दोनों राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं। किसी एक की भी एब्सेंस में एक्सेप्शन फेल होगी। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स मिस करते हैं। अब तुम नहीं करोगे।